Good morning, students. Now, last time we had finished lesson 3, synthetic fibers and plastics. Now we shall move on with lesson 4, materials, metals and non-metals, right? Now there are different properties of metals and non-metals. Metals are all kinds of जो आप उसको जिसको धातु कहते हो, they are all metals. For example, iron, copper, gold, silver, platinum, then lead, all these are metals. Non-metals are the soft porous substances which have different properties like sulfur, phosphorus, they are all non-metals. Now let us study them in detail. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. Appearance and hardness of materials. Now metals are very hard, you know that, right? Your mother must be using several types of cooking utensils which are made up of different kinds of metals. The utensils which are used for puja of god and worshipping and all those things, they are made up of metal copper, right? So you have seen several types of metals which are being used at different purposes in your houses also. किचन में आपने देखा होगा कि आयरन की कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है जिसमें कुकिंग किया जाता है, right? So that way you must have seen several metals being used into your household items. Now for table 4.1, appearance and hardness of materials. Here the object is given. Iron, appearance is shiny or dull, it is shiny, right? So we will mention it here. Metals are always shiny. Hardness is very hard, right? Then coal is not shiny, it is dull. And it is not very hard, it is brittle, टूट जाता है एकदम से. कोल यानी कोलसा जो होता है ना, जो आप इस एज अ फ्यूल यूज़ करते हो. सल्फर इज सेम, इट इज़ ऑल्सो डल एंड ब्रिटल. एल्यूमिनियम इज़ शाइनी, एल्यूमिनियम को शाइन होती है बिकॉज इट इज़ अ मेटल एंड इट इज़ वेरी हार्ड अगेन. Copper is also a metal, so it is shiny, it is very hard. It is reddish kind of a metal which can be seen, right? Okay, now let us study further. Can you name the materials which are metals? The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की अलग अलग होती है जिसके बेसिस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर सकते हो, राइट? Now first we shall study physical properties. Recall that luster and hardness are physical properties. Luster मतलब एक शाइन होती है, चमक होती है मेटल्स के ऊपर जो आपको नॉन मेटल्स में नहीं दिखाई देती है, राइट? दैट इज़ कॉल्ड लस्टर. एंड हार्डनेस, मेटल्स एकदम हार्ड होते हैं, ईजिली ब्रेक नहीं होते. वेराज नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल, ईजिली टूट जाते हैं, ईजिली उसका चूरा हो जाता है, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटल. Okay, now let us study the physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel or an axe? Blacksmith मतलब जो iron की चीज़ें बनाते हैं ना, उनको ब्लैकस्मिथ बोलते हैं. तो वो कैसे आयरन को ये करते हैं, बीट करते हैं, मतलब मारते हैं, या किसी शेप में आपको उसको ये बनना है, जैसे कि शॉवेल या एक्स या ऐसे स्पेड के इसमें आपको चाहिए एक्स बनाना है, तो उसको ऐसा चपटा बनाने के लिए उसको आयरन को ऐसा बनाना तो पड़ेगा ना. तो कैसे करेंगे, वो एकदम से हो जाएगा आयरन? ऐसा नहीं होगा. उसको पहले गर्म करना पड़ेगा, इतना गर्म करना पड़ेगा कि रेड हो जाए वो पूरा, और फिर रेड होने के बाद फिर उसको मारते हैं ऊपर से हथौड़े से, जिसकी वजह से वो फ्लैट होता है. इट इज़ नॉट ईजीली बीटन, राइट? सो दैट इज़ द वे द ब्लैक स्मिथ मेक्स इट इनटू अ प्रॉपर शेप. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? येस, बीटिंग करने के बाद उनमें शेप चेंज होता है. वुड यू एक्सपेक्ट a similar change if we try to beat a piece of coal? नहीं, piece of coal को आप मारोगे तुरंत चूरा हो जाएगा, उसका भुक्का हो जाएगा, राइट? इट कैन नॉट बी बीटन. आप उसके ऊपर ज़रा भी प्रेशर दोगे तो आपके हाथ में ही उसका पाउडर हो जाएगा. इट इज़ वेरी सॉफ्ट.
लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 4.1 टेक अ स्मॉल आयरन नेल यानी कि कीला होता है ना वो, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead, पेंसिल का लेड, ये पेंसिल का जो लेड होता है वो ब्लैक कलर का. Beat the iron nail with a hammer, but take care that you don't hurt yourself in the process. Try to hit hard. जोर से उसको आयरन नेल को बीट करना है, hit hard. Beating an iron nail with hammer. The aluminium wire also. Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead. Record your observations in table 4.2. Malleability of materials. What is this? Malleability. वो उसको आप जोर से मारोगे मेटल को तो वो फ्लैट एक ऐसे इसमें बन जाएगा, एक फ्लैट उसका पत्ता जैसा बन जाएगा, शीट बन जाएगा. That property of beating into sheets is called malleability, which is not there in non-metals. Non-metals में आप इसको कोल को या इसको पेंसिल लेड को मारने जाओगे तो उसका तुरंत पाउडर हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, राइट? ओके. फर्दर आयरन नेल का क्या हो जाएगा? इट विल बिकम फ्लैट. ओके. देन कोल पीस का क्या हो जाएगा? पाउडर. देन एल्यूमिनियम वायर का क्या हो जाएगा? अगेन थिन फ्लैट शीट हो जाएगा, वहाँ ऊपर भी शीट लिख दो. एंड पेंसिल लेड का क्या हो जाएगा? अगेन पाउडर. ओके. नाउ फर्दर you saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. If they were beaten harder, these would be changed into sheets. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आप जब स्वीट्स बाहर से खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाया हुआ होता है. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. फूड रैप करने के लिए भी एल्यूमिनियम फॉइल मार्केट में मिलती है, गर्म रखने के लिए. तो आपकी मदर्स डब्बे में देते टाइम उसको रैप करती होगी. कभी कभी रोटी भी रैप करके रखते हैं गर्म रखने के लिए काफ़ी देर तक. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड malleability. अंडरलाइन दिस. दिस इज द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी. रिमेंबर दैट दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट? मेटल्स आर malleable whereas नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. वो मेलिएबल नहीं होते, थिन शीट्स में नहीं ड्रॉ कर सकते आप उनको, उनका तुरंत पाउडर हो जाता है. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटीरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. कैन वी कॉल दीज मेटल्स? नो, दे आर नॉट मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स. पेंसिल लेड इज ग्रेफाइट, राइट? पेंसिल लेड को ग्रेफाइट बोलते हैं. एंड कोल मतलब कोलसा. ओके. Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle? Wooden handle अगर नहीं है तो आप metallic pan को हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं, गर्म हो जाएगा और आपको क्या होगा? आप जल जाओगे. ठीक है? क्यों? Because metals conduct heat. They are good conductors of heat and electricity. Whereas नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, इसीलिए उसके ऊपर आइदर प्लास्टिक का या वुडन का कवरिंग होता है. Because that is not a good conductor of electricity, heat and electricity. That is why handles जो होते हैं आपके पैन के, नॉन स्टिक के, वो सब नॉन मेटल से बने होते हैं because they do not conduct heat. Further, perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? Wood and plastic do not conduct heat and electricity. They are bad conductors of heat and electricity, right? दोनों. वुड तो परफेक्टली बैड कंडक्टर है. प्लास्टिक में हमने पढ़ा लास्ट लेसन में कि बैकेलाइट की स्विचेस बनती है. बैकेलाइट इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक विच इज़ नॉन कंडक्टर. वो भी, कोई भी प्लास्टिक कंडक्ट नहीं करता है, पर कभी कभी गर्म होकर वो मेल्ट हो जाता है गर्मी की वजह से, राइट? बट बैकेलाइट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच डज नॉट मेल्ट, सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्विचेस एंड वायर्स, राइट? ओके. फर्दर, you must have seen an electrician using his screwdriver. With what kind of handle does it have? Why? Let us find out. screwdriver का हैंडल कैसा होता है? ऊपर का ये जो होता है पोर्शन, दैट इज मेड अप ऑफ आइदर ग्लास और प्लास्टिक, और उसका कवर आई थिंक रबर का होता है.
कभी कभी इट इज़, आई हैव सीन समटाइम्स इट इज़ मेड अप ऑफ रबर, एंड दिस इज़ अ मेटल, राइट. ऐसा जो उसका जो पॉइंटेड एज होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल. तो मेटल का इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे कंडक्टिविटी हमें चेक करने के लिए ये चाहिए, पर अगर इधर से हम होल्ड करेंगे तो हमारा फिंगर जल जाएगा, इसलिए यहाँ पे नॉन कंडक्टर होना चाहिए. तो पीछे हमेशा नॉन मेटल का बना हुआ होता है. आगे एक्टिविटी 4.2, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed. ये एक्टिविटी हमने करी है. देखो आई थिंक आपको लास्ट ईयर पढ़ाया होगा, लास्ट ईयर इसमें साइंस में. दिस इज़ अ बैटरी. बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है छोटे से इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ, और दूसरा टर्मिनल कनेक्ट किया है एक कीली के साथ. दिस इज़ द नेल, आयरन नेल, और उधर से बल्ब को भी कनेक्ट किया है दोनों तरफ, राइट. सो दिस कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर आप नेल को छुट्टा कर दोगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट बंद हो जाएगा और ये जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, बल्ब जो है बंद हो जाएगा. जैसे ही आप नेल को इसके साथ वापस कनेक्ट करते हो वो बल्ब चालू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, राइट. So the activity with various objects in class 6th. Now repeat the activity with the materials mentioned in the table 4.3. Observe and group these materials into conductors and poor conductors. Iron rod or nail, good conductor. Sulfur, non metal है, non good, bad conductor. कोल पीस, बैड कंडक्टर, वो भी कंडक्ट नहीं करेगा, नॉन मेटल है. कॉपर वायर, गुड कंडक्टर. कॉपर वायर तो वायर्स में बनाने में यूज़ करते हैं. कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर 2 मेटल्स विच आर बीइंग यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स. और बैकेलाइट की स्विचेस बनती है. आपकी ये जो मॉड्यूलर स्विचेस आजकल मिलती है आपको मार्केट में, वो बैकेलाइट की बनी हुई होती है या पीवीसी की होती है, right. PVC is polyvinyl chloride which we studied in the last lesson. It is a kind of thermoplastic, right. Okay. You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. Oh, the meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learnt this in class 6th. Where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen wires of coal? कभी कोल की वायर देखी है? नहीं होती है, बन ही नहीं सकती है, बिकॉज कोल पाउडर हो जाता है. डेफिनेटली नॉट. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. डक्टाइल होते हैं मेटल्स, जिससे वो थिन वायर्स में ऐसे रोल किए जा सकते हैं. थिन वायर्स उनकी बनाई जा सकती है. दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी. पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी दैट वाज मेलिएबिलिटी. metals are malleable, they can be drawn into thin sheets, right. And second property is ductility. These are physical properties. I am again repeating. Physical यानी जो ऊपर से दिखती है वो. chemical यानी जो वो रिएक्ट होता है किसी और मटेरियल के साथ और कुछ और बना देता है कंपाउंड. दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, राइट. सो दिस इज समथिंग फिजिकल विच वी कैन सी फ्रॉम द सरफेस, जो आपको ऊपर से दिखाई देता है. दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. Okay, further, have you ever noticed the difference in the sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. Piece of coal नीचे गिराओगे तो इतनी आवाज़ आएगी नहीं. आयरन का शीट नीचे गिराओगे तो एक शार्प सी रिंगिंग साउंड आएगी, राइट. That is called sonorous. The metals are sonorous. They produce a ringing sound. Do you note any difference in the sound produced? Have you seen wooden bells in temples? आपकी स्कूल में भी जो बेल है वो मेटल का बना हुआ है. वुड का कभी बनता है? नहीं बनता है. क्यों? बिकॉज वुड कभी ऐसा साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करता, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता ही नहीं है. इसीलिए वो ब्रास का, या आपकी स्कूल में जो है वो भी ब्रास का ही होगा, या फिर कॉपर का बनाते हैं कभी कभी, राइट. ऐसे मेटल्स का बेल बनता है. कैन यू गिव अ रीज़न? बिकॉज मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. द थिंग्स made of metals produce a ringing sound. Underline this. This is the third property. When they are struck hard, जब आप उसको जोर से
स्ट्रक करोगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, one made up of wood and the other of metal. Can you tell which box is made up of metal by striking both the boxes? Yes. दोनों boxes के ऊपर आप कुछ भी ऐसे बजाओगे तो आपको पता चलेगा जिसका ringing sound आएगा that's a metal, जिसका नहीं आएगा that's a non-metal, right? Since metals produce ringing sounds, they are said to be sonorous. The materials other than metals are not sonorous. So underline this. Metals produce a ringing sound, that is why they are called sonorous. Other materials do not produce a ringing sound, so they are non-sonorous, not sonorous. After performing the above activities, we can say that some metals are hard, lustrous, lustrous मतलब चमकीले, malleable यानी you can draw them into thin sheets, ductile that is you can draw them into thin wires, sonorous that means they produce a ringing sound, and good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. जल्दी से heat पकड़ते हैं, जल्दी से electricity को transfer करते हैं, right? इसीलिए ये सब में metals use होते हैं. Whereas non-metals इसके opposite है. They are soft in nature. They are not lustrous. They don't have a shine. They are not malleable because they cannot be beaten into thin sheets. They are not ductile. They cannot be made into wires. They are not sonorous because they do not produce a ringing sound. And they are bad conductors of heat and electricity except for graphite. Graphite जो है यानी आपका ये पेंसिल का lead, right? It is a good conductor of heat and electricity. अगर इसके अंदर आप heat और electricity pass on करोगे तो वो conduct करेगा. Graphite is an exception to non-metals for conductivity, right? Okay, that will come across further. The materials which generally possess these properties are called metals. ये सारी metals की physical properties है. So please remember this. ये differences में आपको काम आएगी. Write it down as an important point. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. Right? They are not sonorous. They are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals, and examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. Right? Materials like coal, यहाँ से पूरा underline करो because ये दोनों की properties है which you need to write down in your notebooks. They are important. You should learn the properties of both. Metals like sodium and potassium are soft. Yes. हार्डनेस का जो पॉइंट है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स आर हार्ड, उसमें सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस. क्यों? बिकॉज सोडियम सॉफ्ट होता है. इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल. सोडियम ही एक ऐसा मेटल है जिसको हम इसमें स्टोर करते हैं केरोसिन में, और अगर आपको उसको नाइफ से कट करोगे ना तो भी उसका टुकड़ा हो जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है सोडियम. और सोडियम अगर आप केरोसिन से बाहर निकालोगे इमीडिएटली एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसका बर्स्ट हो जाएगा. वहाँ पे क्या होगा, एक ऐसे पटाखे जैसा फायर हो जाएगा. अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वाटर के ऑक्सीजन के साथ भी वो मिक्स हो जाएगा और उसमें भी जलेगा, वाटर में भी स्पार्क करेगा वो, राइट. सो सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं. इनफैक्ट दोनों सोडियम एंड पोटेशियम बोथ. लेट अस रीड फर्दर. Sodium and metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions, right? Mercury एक ऐसा metal है जो hard नहीं होता है, liquid होता है, जो हमारे thermometer में use होता है, वो room temperature पे liquid होता है, right? So that is an exception. Further, chemical properties of metals and non-metals. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वी विल स्टॉप विद रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करके हम लोग स्टॉप करेंगे.
यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन. रस्टिंग ऑफ आयन आपको पता है, जो आयन की चीज़ें होती है उनके ऊपर रस्ट लग जाता है, गंजना जिसको बोलते हैं. रेड कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, पाउडरी मास जैसा उसके ऊपर, और उससे पूरा जो आयन की चीज़ होती है, जो भी आपका गेट है या जो भी चीज़ ऐसे बाहर पड़ी है, जो ये आपके घर में अगर स्विंग होगा, वो क्या बोलते हैं, ईच का होगा, और उसकी जो कड़ियाँ होती है वो अगर आयन की होगी तो वो पूरी रस्ट होती जाती है धीरे धीरे, और सारा आयन कैसे ये पाउडर पाउडर होता जाता है धीरे धीरे. दैट इज़ बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स आयन और फेरस ऑक्साइड. फेरस ऑक्साइड बनता है उसका. फेरस ऑक्साइड मीन्स FeO. और ये जो मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड द रस्ट, राइट. तो वो बनने की वजह से पूरा आयन खराब हो जाता है. रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड. यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी of burning magnesium ribbon in air. You had learnt that in both the processes oxide formation takes place. Complete the following reactions of iron and magnesium with oxygen. राइट. आयन एंड ऑक्सीजन कैसे मिक्स होते हैं? आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. जो वाटर का जो मॉइस्चर है, मतलब हवा में जो मॉइस्चर रहता है, वाटर वेपर रहती है, वो एब्सॉर्ब करता है, और उससे क्या बनाएगा वो मैग्नीशियम, सॉरी, उससे वो बनाएगा Fe2O3, दैट इज़ आयन ऑक्साइड. FeO मैंने जनरल दिया था. दिस इज़ अ बैलेंस्ड रिएक्शन, सो इट मेक्स Fe2O3 विच इज़ द रस्ट. एंड मैग्नीशियम जो होगा वो ऑक्सीजन से मिलेगा, तो इट विल ऑल्सो फॉर्म MgO, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. सो ये जो दोनों है उससे क्या हो जाएगा, वो जो मेटल होता है वो ख़राब हो जाता है. सो यू नीड टू कोट इट. तभी उसको है ना एक ब्लैक कलर के पेंट से ऐसा कुछ कवर करते हैं और कलर करके रखते हैं, या किसी और मेटल का कोटिंग करते हैं ताकि वो आयन ख़राब नहीं हो, राइट. So this is the way it is done. Okay, so now we stop here today. Activity 4.3 we can take it next time. Write down all the important points which I have made you underline into your notebooks. They are the important characteristics of metals and non-metals.